پیرزادہ اپنی ایک محفوظ پناہ گاہ پر صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا تھا۔ لیزا مارٹن کے اغوا میں اس کو مرکزی ملزم گردان کر بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا، اور ابھی اس حوالے سے پاکستان پر الزامات کی بارش ہو رہی تھی جب اچانک مقبوضہ کشمیر اسمبلی پر حملے کی لشکر جرار نے ذمہ داری قبول کر کے جلتی پر تیل پھینک دیا۔ اس مرحلے پر اس کا خاموش بیٹھے رہنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے تمام خطرات بالائے طاق رکھ کر اب منظر عام پر آنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اپنی اور اپنے ملک کی پوزیشن اپنی حد تک ضرور صاف کر سکیں۔ اپنے اس فیصلے سے اس نے جب اپنے مریدوں کو آگاہ کیا تو انہوں نے اپنی تمام توجہ اس طرف مبذول کر دی کہ پیرزادہ کو گرفتاری کے ساتھ ہی کہیں ایف بی آئی کے حوالے نہ کر دیا جائے اور وہ اسے اٹھا کر کیوبا کے عقوبت خانے میں پہنچا دیں، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے مرشد کے فیصلے سے آگاہ ہونے کے بعد اس کے مریدوں نے اس گرفتاری کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور پیرزادہ کے مرید معروف وکیل جنجوعہ صاحب نے ایسے قانونی اہتمام کی تیاری شروع کی جن کی مدد سے وہ پیرزادہ کو امریکہ کے خونی شکنجے سے بچا سکیں۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب پیرزادہ نے اس ڈرامے کا ڈراپ سین کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے مرید اپنے پیر کو خصوصی اہتمام کے ساتھ ڈی آئی جی کے آفس لے گئے جہاں پہلے سے اخبار والے موجود تھے۔ پیرزادہ ڈرامائی انداز میں اپنے وکیل جنجوعہ صاحب کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے اخبار نویسوں میں پہلے سے ٹائپ شدہ ایک بیان تقسیم کیا جس میں انہیں اپنے ماضی کے حوالے سے باخبر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ کچھ ایجنسیاں اس کے امریکی مسلمانوں خصوصاً سیاہ فام مسلمانوں میں اثر و رسوخ کی وجہ سے اس سے اناد رکھتی ہیں اور اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش اس حوالے سے تیار کرتی رہتی ہیں۔ لیزا مارٹن کے اغوا میں اسے ملوث کرنا بھی اس سازش کا حصہ ہے۔ اس نے لیزا مارٹن کی انٹرویو کی خواہش کا ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ ابھی تک دونوں کی باقاعدہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو جب پریس کانفرنس کی اطلاع ملی تو اس نے گھیرا ڈال کر پیرزادہ کو پکڑ لیا۔ اس مرحلے پر جنجوعہ صاحب نے عدالتی حکم نامہ پیش کر دیا جس میں عدالت نے پولیس کو حکم جاری کیا تھا کہ پیرزادہ کو عدالت کے علم میں لائے بغیر امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ جانکی داس اور وزیر خارجہ ادے شیام بڑے ہنگامی دورے پر امریکہ پہنچے۔ دونوں اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہنگامی ملاقات کر رہے تھے۔ دونوں کے ساتھ آئے وفد میں موجود را کا ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس اپنے ایک ماتحت کے ساتھ موجود تھا، جبکہ دوسری طرف سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ سی آئی اے اور ایف بی آئی کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خصوصی میٹنگ بھارتی حکومت کی درخواست پر بلائی گئی تھی، جہاں ادے شام اور جانکی داس نے پہلے ایک طویل تقریر باری باری پاکستان کی بھارت کے خلاف کارروائیوں کے ضمن میں کی۔ ان کی تقاریر کی طوالت سے وہاں موجود تمام معزز ارکان مجلس خاصے بور ہو رہے تھے۔ انہیں اپنا تعصب بھرپور طریقے سے نکالنے اور پاکستان کے خلاف جی بھر کر زہر اگلنے کا ایسا موقع پھر کب میسر آ سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے دونوں خاموش ہوئے تو امریکی وفد نے قدرے سکھ کا سانس لیا۔ شریمان سیکرٹری آف اسٹیٹ، اب ہم آپ کی خدمت میں ان کی دہشت گردی کی تازہ ترین ثبوت پیش کرتے ہیں۔ جانکی داس نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرنے کے بعد اپنی سانپ جیسی تیکھی نظروں سے را کے ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس کی طرف دیکھا، جس نے اپنے بریف کیس سے 3 ایک ہی طرح کی فائلیں نکالی اور انہیں سی آئی اے، ایف بی آئی کے ڈائریکٹرز اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کے سامنے رکھ دیا۔ تینوں نے فائلوں کا مطالعہ شروع کیا۔ اس دوران ان کی طرف سے ہونے والے مختلف سوالات کے جوابات انہیں ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس سی آئی کی طرف سے ملتے رہے۔ تینوں کے فائلوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈائریکٹر سی آئی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا اور اس نے بریفنگ کا آغاز کیا۔ اس بریفنگ میں اس نے پاکستان کی طرف سے ہونے والی مبینہ دہشت گردی کی تفصیلات بالکل اسی انداز میں بیان کرنا شروع کی جس طرح اس سے پہلے جانکی داس اور ادے شیام بیان کر چکے تھے۔ امریکی سی آئی اے کا ڈائریکٹر باقی وفد کے ارکان کے برعکس کچھ زیادہ ہی بددلی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جسے بطور خاص را کے ڈائریکٹر نے نوٹ کیا، لیکن اسے یہاں صرف اپنی وہ ڈیوٹی ادا کرنی تھی جس کے لیے اسے امریکہ جہاز پر سوار کر کے لایا گیا تھا۔ سیکرٹری صاحب، ہم پر فوج کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، خصوصاً نوجوان آفیسرز میں سخت بے چینی پائی جاتی ہے۔ جنتا الگ سے ہماری جان کو آ رہی ہے اور ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ کو مطلع کر رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے صبر کرنا ممکن نہیں رہا، خصوصاً اسمبلی پر حملے کے بعد سے ہم بے حد مجبور ہو گئے ہیں۔ ادے شام نے بین السطور میں انہیں اپنے عزائم سے آگاہ کرتے ہوئے شاید امریکیوں کی آشیرواد طلب کی تھی۔ جی ہاں، ہمارے لیے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ ناگزیر ہو چکا ہے، جانکی داس بولا۔ معزز منسٹر صاحبان، شاید پریزیڈنٹ اس بات کو پسند نہ کریں، ہماری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ آپ صبر سے کام لیں اور دونوں اطراف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اس خطے میں ایک نہ ختم ہونے والی تباہی کا آغاز ہو جائے۔ سیکرٹری نے انہیں سمجھایا، لیکن ہمارے لیے یہ ناممکن ہے شریمان۔
जानकी दास के लिए खुद पर काबू पाना नामुमकिन हो रहा था। आप आखिर किस बुनियाद पर हमला करना चाहते हैं? CIA के डायरेक्टर ने बिलाखिर फाइल बंद करते हुए जबान खोली। जनाब वाला, कश्मीर असेंबली पर इन लोगों का हमला। उदय शाम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन डायरेक्टर CIA ने उसकी बात हाथ के इशारे से काटते हुए उसे सब्र की तलकीन की और अपना ब्रीफकेस खोलने लगा। ब्रीफकेस से एक सुर्ख रंग की फाइल उसने निकाली जिस पर बड़े बड़े काले हरूफ में टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। ये फाइल उसने रॉ के डायरेक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर दास, पाकिस्तानी अथॉरिटीज हमसे इस शख्स मौलाना कादरी की गिरफ्तारी का मुतालिबा कर रही हैं, जो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते से अपना कारोबार समेट कर पेरिस मुंतकिल हो चुका है। आप मेरा मतलब समझते हैं ना? रॉ के डायरेक्टर के चेहरे का रंग एक लम्हे के लिए तो फक हो गया, लेकिन फौरन ही वो संभल गया। उसने किनारे से जानकी दास की तरफ देखा जो उसके दाएं हाथ बैठा हुआ था। फिर उसकी नजरें एक लम्हे के लिए उदय शाम से टकराईं और दोनों के मुंह लटक गए। तीनों ने दिल ही दिल में ISI को गालियां दी और उनके बोलने का अंदाज बदल गया। देखिए महाराज, ये सब इन लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा है। इसी तरह ये अपने हर गलत एक्शन का जवाब तलाश कर लेते हैं। उदय शाम ने अंग्रेजी बघारनी शुरू कर दी। इज्जतमाब मिनिस्टर, मेरा सवाल अपनी जगह कायम है। क्या आप इस शख्स की गिरफ्तारी की इजाजत देंगे? CIA के डायरेक्टर्स ने उसकी आंखों में बराह रास्त झांका और उदय शाम खिसियाना होकर जानकी दास की तरफ देखने लगा। अगले चंद मिनट में महफिल का रंग ही बदल गया। फरीकैन इंतहाई मुनाफिकत से एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खालिस डिप्लोमेटिक जबान बोलनी शुरू कर दी और अगले 20 मिनट बाद वो मीटिंग खत्म करके बाहर आ गए, जहां अखबार नवीसों के हुजूम से खिताब करते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि अमरीकी हुकूमत की हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसायों की तरह रहें। पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका का साथ दे और पाकिस्तानी वजीर आज़म जो बहुत लिबरल हैं, इंतहा पसंदी के खिलाफ बड़े सख्त इक़दामात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो इंतहा पसंदों को ख़त्म करने का अपना मिशन जारी रखेंगे और भारत में मुदाखलत करने वाले दहशतगर्दों को कंट्रोल करेंगे। ये एक रूटीन स्टेटमेंट थी। जानकी दास के इशारे पर भारत से उनके वफ्द के साथ आए 2 अखबार नवीसों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पाकिस्तानी जारहियत और कश्मीर असेंबली पर हमले के हवाले से 2-3 तुंदो तेज सवालात कर दिए। ऐसे बेहुदा सवालात पर आम किस्म के सरकारी अफसर को भी गुस्सा आ सकता था, लेकिन उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मुस्कुराते हुए उनके सवालात टाल दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। मैंने तो अर्ज किया था श्रीमान के मुकम्मल होमवर्क के बगैर नहीं जाना चाहिए। मीटिंग के खात्मे पर अपने होटल पहुंचते ही उसके सेक्रेटरी ने कहा, अरे भाड़ में गया तुम और तुम्हारा होमवर्क, जलील करवा के रख दिया। जानकी दास फट पड़ा, मिस्टर दास, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी एजेंसी ने हमें हमेशा रुसवा ही करवाया है। उदय शाम ने भी दिल की भड़ास निकाली, और ये सारे उल्लू के पट्टे अखबार वाले हुकूमत के खर्च पर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। एक फिक्रा तो उससे पाकिस्तान के खिलाफ कहलवा नहीं सके। मेरे बस में हो तो इन्हें जहाज से धक्का देकर समंदर में फेंक दूं। नॉनसेंस। जानकी दास ने अखबार नवीसों को गालियां देने शुरू कर दी, जो भारत से हुकूमत के खर्च पर आए थे और कुछ नहीं कर पाए। इनका इंतखाब हमने नहीं श्रीमान, CBI वालों ने किया था। दास ने अपनी सफाई पेश की, वो भी गधे हैं साले। जानकी दास का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। दोनों इंडियन हाई कमीशन में मौजूद थे। शर्मा ने गीता को होटल ही में बता दिया था कि खुसूसन वो यहाँ कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं कर सकता। उसने गीता से कहा था कि पाकिस्तानी बहुत चालाक होते हैं, एक लम्हे के लिए उन पर से नजर नहीं उठाते। ऐन मुमकिन है कि इस कमरे में कोई खुफिया कैमरा उनकी हरकत और सकनात को नोट कर रहा हो, लेकिन वहाँ हाई कमीशन में ऐसा कोई मसला नहीं है। गीता इस सोने की चिड़िया को हाथ से खोने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अभी तक उसका जहन इस नौजवान वेटर में उलझा हुआ था जिसने उसे फोन नंबर दिया था और जिससे वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुतासिर होने लगी थी। कोई सिगरेट वगैरह का बंदोबस्त भी किया है या नहीं? सुबह शर्मा के पहलू से उठने के बाद उसने तवील अंगड़ाई लेते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, दरअसल वो हमारा चौकीदार जो कभी मुझे चरस ला कर दिया करता था, गुज़श्ता 6-7 रोज से गायब है। खुदा जाने कहाँ मर गया है। शर्मा को गुस्सा आने लगा। उसकी महबूबा ने उससे चरस के सिगरेट की फरमाइश की थी और वो पूरी करने से कासिर था। ओह शर्मा, गीता ने करीबन चीख कर कहा, तुम्हें इल्म था कि मैं आ रही हूँ और तुमने। उसने गुस्से से बात अधूरी छोड़ दी। हनी प्लीज बुरा मत मानो, यहाँ अपने सिक्योरिटी इंचार्ज ने तो हमारे बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा रखी है। एजेंसियों के लोग साए की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं। नागुज़ीर जरूरत के बगैर हम घर से ही नहीं निकलते। शर्मा वाकई शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। ऑल राइट, इट्स ओके, मैं कर लूंगी बंदोबस्त। मुझ पर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं। शुक्र है भगवान का मैंने तुम्हारे कहने में आकर फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन नहीं कर ली। गीता ने उसकी बेबसी का एहसास कर लिया था। लेकिन तुम कैसे करोगी डार्लिंग, तुम भी अंडर ऑब्जर्वेशन होगी। शर्मा ने उसे मोहतात रहने की तलकीन की।
ओहो शर्मा यार, मुझे न डराया करो इन बातों से। भाई मैं आजाद पंछी हूँ, करने दो मेरी निगरानी इन्हें। चरस पीने के इल्जाम में तो वो गधे मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मैं कोई अपने साथ तो नहीं ले जा रही ना। और वो अपना वेटर शिराजी किस दिन काम आएगा? उसने आखिरी फिक्रा कदरे मुस्कुराते हुए शर्मा से कहा। बड़ी खतरनाक शय हो तुम, शर्मा ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा। वो तो है। गीता ने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट सुलगाया और लंबा कश लेकर धुएं के मरगूले फजा में उड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपने होटल की तरफ जा रही थी। जैसे ही हाई कमीशन से वो कार में बरामद हुई, इंस्पेक्टर मलिक ने जो कुछ फासले पर दरख्तों के दरमियान मोटरसाइकिल खड़ी किए उसका मुंतजिर था, अपने मोबाइल फोन से कैप्टन राहील को मुत्तला किया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके नीचे आ गया। गीता की गाड़ी का 2 गाड़ियां और 1 मोटरसाइकिल ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन हाई कमीशन के होशियार ड्राइवर को इनमें से किसी पर शक नहीं हुआ था। साला ऐसे ही फेंकता रहता है। उसने होटल पार्किंग से ड्राइवर को वापस जाने की हिदायत करते हुए दिल ही दिल में कहा। हाई कमीशन से यहाँ तक वो बतौर खास गाड़ी के शीशों से उस बात का जायजा लेती आई थी कि कहीं कोई गाड़ी उनका ताक़ुब तो नहीं कर रही। उसे ऐसी कोई कार दिखाई नहीं दी थी जिसने हाई कमीशन से यहाँ होटल तक उनका पीछा किया हो। अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर गिरी और गहरे सांस लेने लगी। उसे अपने दौरे को हर मुमकिन तरीके से कारआमद बनाना था। पीरजादा की स्टोरी ने उसे आसमान सहाफत का सितारा बना दिया था और उसका चैनल उससे एक आध ऐसी ही स्टोरी की मुसलसल डिमांड कर रहा था। करती हूँ कुछ, उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा और फोन पर बारटेंडर शिराजी का नंबर मिलाने लगी। राहील के मोबाइल की घंटी बजी और स्क्रीन पर होटल का नंबर आया तो उसका दिल एक मर्तबा मामूल से ज्यादा जोर से धड़का। यस, उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा। मैं हूँ गीता पाठक। दूसरी तरफ से उसे हस्बे तवक्को आवाज सुनाई दी तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। ओ मैडम आप, माय प्लेजर। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मुझे आपके फोन सुनकर कितनी खुशी हो रही है। उसने ज़हनी तौर पर खुद को मुकम्मल चौकस कर लिया था। कैसे हो तुम? गीता ने लहजा कदरे शोख कर लिया था। जी एकदम शानदार, बल्कि अब तो बहुत ही शानदार, उसने बज़ाहिर जोश खरोश से कहा। एक काम था तुमसे। गीता ने कदरे झिझक से कहा। मेरी खुशकिस्मती है मैडम आपके किसी काम आ सकूं। राहील वाकई खुशी से बेकाबू हो रहा था। तुम यहाँ होटल नहीं आ सकते? गीता ने कुछ सोचकर कहा। क्यों नहीं मैडम, अभी आया। आप अपने कमरे में हैं? हाँ, कितनी देर तक पहुंचोगे? गीता ने सामने दीवार से चिपकी घड़ी पर नजरें जमाते हुए कहा। 10 मिनट में मैडम, राहील ने कहा, हालांकि वो होटल के साथ वाली बिल्डिंग में मौजूद था। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। गीता ने फोन रख दिया। 10 मिनट बाद वो गीता के कमरे के बाहर दस्तक दे रहा था। जबरदस्त भाई, तुम तो कमाल के आदमी हो। 10 मिनट बाद आ ही गए। गीता ने उसे तहसीन भरी नजरों से देखा। मैडम वहाँ वेस्ट में रहकर यही तो एक आदत अच्छी अपनाई है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बैठो, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? चाय, कॉफी या कुछ और? उसने सामने सोफे की तरफ इशारा करते हुए राहील की तरफ अजीब सी नजरों से देखकर अपने फिक्रे के आखिरी अल्फाज कदरे चबाते और मुस्कुराते हुए अदा किए। अरे नहीं मैडम, आप तो मेहमान हैं हमारी, मैं मंगवाता हूँ आपके लिए। उसने जानबूझकर गीता पाठक की आखिरी बात नजरअंदाज कर दी। देखो भाई, ये मैं और आप में गाड़ी निकल जाती है। हम तो जर्नलिस्ट लोग हैं, तकल्लुफात वैसे भी पसंद नहीं करते। अच्छा बोलो, चाय या कॉफी? गीता ने फिर पहले वाला अंदाज इख्तियार किया। कॉफी ही मंगवा ले मैडम प्लीज, यहाँ कम से कम मैं तो और कुछ खाने पीने से रहा। उसने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। गीता ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाली। थैंक यू, उसने कहा और गीता ने फोन पर कॉफी का ऑर्डर कर दिया। कॉफी आने तक वो घुमा फिरा कर राहील से बातें कर रही थी। राहील ने जिंदगी में कभी ऐसी शानदार अदाकारी नहीं की थी जैसी अब कर रहा था। वो जानता था कि गीता पाठक उसकी शख्सियत को तोल रही है कि उस पर कितना वजन लाद सकती है, और राहील उसके सामने खुद को मुकम्मल गधा बनाकर पेश कर रहा था ताकि गीता कोई बात कहने में हिचकिचाहट महसूस न करे। आप मुझे शिराजी कह सकती हैं मैडम, उसने गीता से कहा, जो उसे बार बार मिस्टर कह रही थी। थैंक यू, तुम बंदे दिलचस्प हो। ये बताओ, मेरे लिए कुछ कर भी सकोगे? उसने सिगरेट सुलगाते हुए राहील को अजीब से अंदाज में देखा। मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ मैडम। राहील ने कुछ ऐसे अंदाज में ये बात कही कि गीता का दिल दहल कर रह गया। उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। तुम्हारी बातें तुमसे बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं, लगता है फिल्में बहुत देखते हो। गीता ने संभल कर कहा। आपने बुरा तो नहीं माना मैडम? राहील ने उसकी तरफ देखकर उसकी आंखों में झांका। मुझे अच्छा लगा। गीता ने करीबन हंसते हुए लेकिन मजाक के अंदाज में कहा। एक बात कहूँ मैडम, अगर आप बुरा मत माने। राहील ने अब उस पर नफ्सियाती हमले की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। गीता ने बज़ाहिर रोमांटिक होने की अदाकारी की। आप मुझ पर एतबार कर सकती हैं, मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने बिजनेस में और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसने पहला भरपूर हमला किया। अच्छा, क्या कर सकते हो?
गीता ने फिर बात अधूरी छोड़ दी। मैडम, इस शहर में इमिग्रेशन से नारकोटिक्स तक सब अपने जानने वाले हैं। 1 मिनट जरा टीवी लगाएं। अचानक ही उसने कहा तो गीता चौंकी और उसने टीवी का स्विच ऑन करके उसकी तरफ देखा। बुरा मत मानिए मैडम, मैं 6 साल से इस बिजनेस में हूँ। आप इंडियन हैं, जहां एजेंसी के लोग किसी भी गैर मुल्की की बातें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये बात मुझे एजेंसी फ्रांस प्रेस की मिशेल बैरत ने सिंगापुर में बताई थी कि इस तरह हल्की आवाज में टीवी लगाने से कमरे में होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड नहीं हो सकती। उसने गीता का एतमाद हासिल करने के लिए भरपूर कदम उठाया। वंडरफुल यार, तुम तो वाकई बहुत काम के आदमी हो। अच्छा ये बताओ, कुछ पीने के लिए भी मिल सकता है या नहीं? मेरा मतलब है ड्रिंक्स के अलावा। गीता उसके बिछाए हुए जाल में बड़ी खुशी से फंस रही थी। अरे मैडम, आप हुक्म कीजिए। हेरोइन, चर्स, गांजा। मैंने कहा ना कि मैं एजेंसी का रहने वाला हूँ। मैडम, मैंने ये जो आजकल लीजा मार्टिन की बहुत खबरें आ रही हैं ना, उसने जानबूझकर बात नामुकम्मल छोड़ दी। हाँ, क्या है उसे? गीता का तजस्सुस अपने नुक्ता उरूज को छू रहा था। मैंने उसे 1 पाव चर्स बतौर तोहफा पेश की थी। हाय बेचारी 2 रोज बाद ही अगवा हो गई। मैंने तो कहा था कि मेरे पास बहुत अच्छा और महफूज ठिकाना है, लेकिन अमेरिकन थी, अपनी मर्जी करने पर मुसिर रही। खैर, हमें क्या जी, आप फरमाइए। जैसे जैसे उसके मुंह से ये बातें निकल रही थीं, गीता पाठक को अपने दिल की धड़कनें बेकाबू होती महसूस हो रही थी। ये पठान ज़्यादा तो उसकी तवक्कुआत से बढ़कर काम का आदमी निकला था। वो अपनी बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए उससे लिपट गई। शिराजी, यू आर वंडरफुल। मैडम प्लीज, वो तो ठीक है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मेरा मतलब है मैं भी गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ और भरपूर जज्बात भी रखता हूँ। उसने बिल्कुल नौउम्र लड़कों की तरह शर्माते हुए कहा तो गीता के दिल में जलतरंग बजने लगी। अरे कोई मसला नहीं, सब चलता है। उसने राहिल की तरफ देखकर आंख दबाई। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे से बाहर जा रहे थे। शिराजी ने उसे अपने इलाके में छुपे अलकायदा के मेंबरान से मिलाने का वादा किया था और उसे बताया था कि वो उसकी खातिर बड़े से बड़ा खतरा मोल ले सकता है। जवाब में उसने गीता से सिर्फ एक ही दरखास्त की थी कि उसे अपनी हुकूमत की तरफ से बॉम्बे का वीजा लगवा दे, क्योंकि उसे इंडियन एक्ट्रेसों से मिलने का बहुत शौक है और इंडियन गवर्नमेंट सिवाय दिल्ली के और किसी शहर का वीजा नहीं लगाती। गीता पाठक ने इस सोने की चिड़िया को अपनी दानिस्त में अपनी जुल्फों का असीर बना लिया था। उसने खुद सुपुर्दगी के आलम में अपने कमरे में 2 मरतबा उससे मुआनका किया और उसे कहा था कि वो उसे यहाँ से अपने साथ बॉम्बे लेकर जाएगी, उसे खुद हाई कमीशन ले जाकर वीजा लगवा कर देगी और यही नहीं, जिस एक्ट्रेस से वो चाहेगी उसकी मुलाकात करवाएगी, लेकिन इस शर्त पर कि वो भारत में उसका जाती मेहमान होगा। और शिराजी ने शर्माते हुए उसकी ये शर्त मान ली थी। गीता पाठक को उम्मीद थी कि इस गधे के जरिए वो अगर अलकायदा के किसी काबिल जिक्र लीडर का इन हालात में इंटरव्यू करने में कामयाब हो गई तो उसकी लॉटरी निकल आएगी, लाखों रुपए उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस वक्त वो शिराजी के साथ उसके फ्लैट में जा रही थी, जहां उसने गीता के लिए चर्स नोशी का एहतमाम करना था। पार्किंग में मौजूद उसकी कार में बैठते हुए गीता हैरान रह गई। नए मॉडल की खासी महंगी गाड़ी थी। तुम्हारी है क्या? उसने राहिल की तरफ देखकर आंख दबाई। अरे मैडम, आपने इस खाकसार का भी देखा ही क्या है? ये होटल की जॉब तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अपना पर्दा रहे। मैडम, मेरे वालिद अपने कबीले के सरदार हैं, बहुत जायदाद है उधर एजेंसी में अपनी, और मैं भी बहुत कमा लेता हूँ। यहाँ फॉरेनर्स की खिदमत करके फिर सारी दुनिया में घूमने का मौका मिल जाता है। अगले 2-3 माह के बाद कंपनी मुझे जापान भेज रही है। हमारे होटल की बड़ी चेन है, आपसे क्या पर्दा। मिस लीजा मार्टिन ने $2000 दिए थे। वो किसी का इंटरव्यू करना चाहती थी। क्या नाम है उस कमबख्त का? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अपने बंदे हर जगह मौजूद हैं मैडम, आजमा कर देख लें आप भी। बेचारी लीजा, ओह माय गॉड, मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई है। उसकी जबान मुसलसल चल रही थी। फ्लैट पहुंचने तक उसने गीता पाठक के मुसलसल सवालात के जवाबात में उसे ऐसी शानदार कहानी सुना दी और ऐसा चक्कर दिया कि अब उसके लिए शिराजी से अलग रहना कारे दारद था। उसने बड़े ड्रामाई अंदाज में गीता पाठक से वादा किया था कि अगर वो इसका नाम दरमियान में न आने दे तो वो ऐसे मुजाहिदीन से उसकी मुलाकात भी करवा सकता है जिनके जरिए लीजा मार्टिन तक पहुंचा जा सके। उसकी आखिरी पेशकश ने तो गीता पाठक को सर से पांव तक हिला कर रख दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि इस मर्तबा दिनेश शर्मा को अपने हिस्से का माल हरगिज नहीं खाने देगी और रॉ से बराह रास्त डील कर लेगी। ये तो लाखों का प्रोजेक्ट था। ऐसी तैसी दिनेश शर्मा की, नहीं करता मुझसे शादी तो जाए भाड़ में, मेरे लिए और बहुत गधे मौजूद हैं। उसने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहा। अब वो आमदा हालात की मंसूबाबंदी कर रही थी और इन इम्कानात का जायजा ले रही थी जो उसे आसमान की बुलंदियों तक उड़ा ले जाने वाले थे।